हेलो एवरीवन। वेलकम बैक। आज नेक्स्ट पार्ट में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है न्यूमेरिकल उसे वाइंड अप करेंगे। तो लास्ट टाइम सिक्स क्वेश्चन तक हमने किया था। सेवन से हम स्टार्ट करके पार्ट टू और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सारे न्यूमेरिकल्स विल बी कंप्लीटेड। और अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो तो you can just leave a comment below so that I will be able to answer your queries. Alright, तो स्टार्ट करते हैं सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि दो चार्ज है, मैग्नीट्यूड जिसका -4q है और +2q है, और वो लोकेटेड है 2a, 0 और 5a, 0 रिस्पेक्टिवली पे। We need to find electric flux due to these charges through a sphere of radius 4a with its center at the origin. तो फर्स्ट स्टेप हमारा होना चाहिए कि हम इस क्वेश्चन को विजुअलाइज करें विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। सो हियर इज द डायग्राम वी कैन सी। सो इन दिस डायग्राम वी कैन सी अ स्फीयर विद सेंटर एट द ओरिजिन, और वहां से 2a दूरी पे -4q चार्ज है और 5a दूरी पे 2q चार्ज है। और ऑब्वियसली इसका रेडियस 4a है, so we have made 4a over a point. Now we have to calculate flux through these two charges. So electric flux can be calculated using Gauss law. So what exactly Gauss law speaks is that closed integral E bar dot dA bar is equals to, and this is nothing but it is a flux only, that is electric flux, and its formula is given by Q enclosed upon permittivity of free space. As we have discussed already, जो चार्ज है वो enclosed होना चाहिए. So closed surface, that is a Gaussian surface. In that whatever amount of charge is been enclosed, so वो charge upon permittivity of medium. So अगर हम ध्यान से देखें तो sphere के अंदर charge that is enclosed is only -4q. So यहाँ पे हम लिखेंगे -4q by epsilon 0. So this is what the value of electric flux due to these charges we are getting, and we can clearly see only this charge will constitute to electric flux and this charge will not. So the answer is -4q by epsilon 0. So let's move on to the second question. So here is the second question. We can see यहाँ पे हमें given है 6 microfarad का एक capacitor which is charged by a 300 volt supply. It is then disconnected from the supply and is connected to another uncharged 3 microfarad capacitor. So we need to find how much electrostatic energy of the first capacitor is lost in the form of heat and electromagnetic radiation. So again the first step would be, हम लोग इसका डायग्राम बना लेंगे और we will try to check the two conditions. So here we can see दो डायग्राम्स बनाए हैं यहाँ पे. First is that in which 6 microfarad capacitor is connected to a 300 volt battery supply. So यहाँ पे क्या होगा, ये चार्ज ये कैपेसिटर विल स्टार्ट चार्जिंग इटसेल्फ. ऑलराइट, सो वी कैन से एनर्जी जो भी स्टोर्ड होगी इसके अंदर विल बी, लेट्स सपोज इट हैज टू बी E1, and this energy can be given by the formula half CV square. Alright, so we have different formulas for energy stored. So यहाँ पे ये यूज करेंगे because the data given is capacitance and potential. So here it can be written as half into C is given as 6 microfarad, that is 6 into 10 raised to -6, into V square, that is 300 square, that is 9 into 10 raised to 4. So the result this comes out to be, we can say यहाँ पे ये आएगा 327 into 10 raised to -2 joules. Alright, so this is what the energy for the first case we are getting. Now in the second case क्या हुआ कि ये कैपेसिटर अब चार्ज हो चुका है, अब हमने इसे डिस्कनेक्ट कर दिया और इसे एक अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ 3 माइक्रोफैराड के साथ कनेक्ट कर दिया. एज वी कैन सी इसकी कैपेसिटेंस 6 है और उसकी 3 है. तो वी कैन से कि जितना एनर्जी इसके पास स्टोर हुआ होगा उतना इसके पास पूरा नहीं जा पाएगा. कुछ एनर्जी विल बी लॉस्ट एंड दैट लॉस्ट वी हैव टू कैलकुलेट. ऑलराइट, सो वी कैन से फॉर द सेकंड पार्ट वी कैन टेक इट विद अ डिफरेंट कलर. तो यहाँ पे देखते हैं इसको. Now we can see the energy in this case. As we can see, both the capacitor are connected in parallel.
So the equivalent will be 3 plus 6. Just we have to add the capacitance in parallel. So इसका आएगा आंसर 9 माइक्रो फराड. ऑलराइट, सो ये सिस्टम का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो 9 माइक्रो फराड है. तो यहाँ पे जो एनर्जी आएगी वो एनर्जी आएगी एज यहाँ पे बैटरी सोर्स नहीं है, जस्ट यहाँ पे अपने पास सी की वैल्यू है, और वी कैन से यहाँ पे हम सो वी हैव टू यूज सम अदर फॉर्मूला फॉर एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल का तो कोई डेटा गिवन नहीं है ना सेकंड केस में. सो वी हैव टू टेक E2 एज क्यू स्क्वायर बाय 2C. यहाँ पे चैलेंज है कि फर्स्ट हमें Q फाइंड करना पड़ेगा. सो Q एज वी कैन सी, Q in the first case we can calculate, so we can say since, यहाँ पे ले लेते हैं Q के लिए, since Q is equals to C into V, तो फर्स्ट केस में हमारे पास जो चार्ज आने वाला है वो आएगा C6 है 10⁻⁶ farad into V is 300. so this comes out to be 18 10⁻⁴ कूलम. ऑलराइट, सो इतना अमाउंट ऑफ चार्ज है फर्स्ट केस में इस कैपेसिटर पे आया होगा, तो वही अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ पे भी होगा, बिकॉज द चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड. तो जितना चार्ज फर्स्ट केस में होगा उतना ही चार्ज सेकंड केस में भी आया होगा. और बिकॉज सेम चार्ज यहाँ पे जो डेवलप हुआ है 18 इंटू 10⁻⁴ कूलम का, वही चार्ज इस पे भी होगा यहाँ पे, और यही चार्ज इस 3 माइक्रो फराड पे भी डिस्ट्रीब्यूट होगा. तो होल ऑफ द सिस्टम विल कंटेन सेम अमाउंट ऑफ चार्ज दैट इज associated with 6 microfarad alone. So I hope ये आपको समझ आ रहा होगा ये point. Therefore we can say the value of E2. So we can now easily write the value of E2 as Q square, that is 18 square into 10⁻⁴ square divided by 2 into C. कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट है 9 इंटू 10⁻⁶. तो इसको सॉल्व करने पे जो फाइनल रिजल्ट हमें मिलेगा वो है 18 इंटू 10⁻⁻² जूल. So this much amount of energy will be stored in the second case. So here we can clearly see the difference. यहाँ पे 27 है और यहाँ पे 18 है. So the energy lost can be written as, therefore we can say energy lost will be equals to E1 minus E2, और ये जस्ट हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, दैट इज 27 माइनस ऑफ 18, और यहाँ पे 10⁻² को हम कॉमन आउट ले सकते हैं जूल्स. तो यहाँ पे फाइनली रिजल्ट आएगा 9 इंटू 10⁻⁻² जूल. सो दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट और रेडिएशन. तो ये हो गया 8 का सॉल्यूशन. आई होप you have understood the concept. Now let's move on to the ninth question. All right, so here we have given the question that 125 small liquid drops, each carrying a charge of 0.5 microcoulomb and having diameter of 0.1 mm, 1 meter, forms a bigger drop. We need to calculate potential at the surface of the bigger drop. So for it, first we have to write the given data. So इसको हम विजुअलाइज करते हैं, ट्राई करते हैं विजुअलाइज करने के लिए क्वेश्चन. तो देखते हैं ये इसमें क्या बोल रहा है ना कि वी हैव बीन गिवन विद 125 स्मॉल ड्रॉप. सो यहाँ पे इसका डेटा अगर हम लिखें तो वी कैन राइट, लेट्स सपोज आर स्मॉल आर टू बी द रेडियस ऑफ स्मॉल स्फीयर और स्मॉल लिक्विड ड्रॉप्स. तो वी कैन से इसका जो रेडियस होगा वो होगा 0.05 मीटर. ऑलराइट, चार्ज हम एक स्फीयर पे ले लेते हैं स्मॉल क्यू, और उसकी वैल्यू गिवन है 0.5 माइक्रोकूलम. ऑलराइट, जब ये सारे मिला करके एक बिग ड्रॉप बनाते हैं, तो लेट्स सपोज इसका रेडियस हम कैपिटल आर मान लेते हैं और चार्ज ऑन द बिग स्फीयर लेट्स सपोज इट हैज टू बी कैपिटल क्यू. ये दोनों चीज अभी फिलहाल के लिए अननोन है. वी नो वन थिंग, ये सारे ड्रॉप्स जब मिल करके एक बिगर ड्रॉप बनाएंगे तो इनका वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहेगा. ऑलराइट, सो ये चीज
जब भी कोई चीज को हम कास्ट करते हैं बिगर चीज में, या बिगर चीज जब भी स्प्लिट होती है स्मॉलर चीज में, तो उसका वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट होता है। ऑलराइट, तो वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब ये है कि जो भी इसका वॉल्यूम होगा बिगर वाले का, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब, बिकॉज इट्स अ स्फीयर। तो ये जो भी वॉल्यूम होगा ये बराबर होगा इन सारे को मिला करके, दैट इज 125 है ये सारे, और इनका जो वॉल्यूम है एच ईच एक का जो वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब। सो यहाँ से वी कैन सी 4/3 पाई, 4/3 पाई कैन बी कैंसल्ड आउट, देयरफॉर ये जो आर की वैल्यू आएगी वो आएगी 5 आर, और वी कैन सिंपली से इट एज टू बी 25 × 10⁻²मीटर। तो ये वैल्यू मिली है कैपिटल आर की, दैट इज रेडियस ऑफ बिगर स्फीयर। और as we can see, charge on each sphere is been given as this, so we can say total charge on the bigger sphere will be n times of q, that is we can say that is 125 into q, that is 0.5। so जो total charge आएगा bigger sphere पे वो आएगा we can write it as to be 62.5 micro coulomb। alright, so ये value है total charge की। now we have to calculate the potential, so potential का straight away formula we can use। so from here we can say पोटेंशियल बेसिकली होता क्या है, पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल इज गिवन बाय द फॉर्मूला के क्यू बाय आर। सो फॉर द बिगर स्फीयर वी आर राइटिंग, सो के की वैल्यू वी कैन स्ट्रेट अवे यूज 9 × 10⁻⁹। अगर याद नहीं है तो ये आपको याद रखनी पड़ेंगी वैल्यूज। एंड क्यू की वैल्यू है 62.5 माइक्रोकूलम, सो 62.5 × 10⁻⁻6 कूलम डिवाइड बाय आर। R is 25 into 10 raised to minus 2. On solving this, so we can say the potential of bigger sphere comes out to be that is 3 10 raised to 5, and here it is we can say 22.5 volt। Alright, so ये value हमें मिली potential की। Alright, so I hope you have cleared with the concept of this question. Now let's move on to the second question, that is 10th problem. Okay, so here we have been given with a question related to dipole moment। इसमें we have been given with a dipole moment of water molecule is 6.3 × 10⁻³ coulomb meter। Alright, a sample of water contains 10⁻21 molecules whose dipole moments are all oriented in electric field of strength 2.5 10⁻5 Newton per coulomb। We need to calculate the work done to rotate the dipoles from their initial orientation θ1 0 to 1 in which all dipoles are perpendicular to the field, that is θ2 90 degree। So basically work done इसमें calculate करना है। तो I've already derived for a dipole which has been placed in a magnet electric field। So वहाँ पे जो formula था हमारे पास वो था, so we can use the formula that is work done is given by PE cos θ1 minus cos θ2। So cos θ1 वो एंगल है, θ1 is that angle which initially the dipole moment was at, that is θ1, और θ2 वो एंगल है जो बाद में आया उसके ऊपर after the orientation, that is perpendicular, ये θ2 दिया 90 degree। So just we have to substitute its value and we can get the answer। Alright, so P that is dipole moment दिया है हमें कितना 6.3 into 10⁻⁻30, and यहाँ पे cos θ1 that is cos 0 will be 1 minus of 0, and also we have been given with electric field is 2.5 into 10⁻5। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज हमें ध्यान रखनी है, दिस इज फॉर अ सिंगल डायपोल मोमेंट। यहाँ पे लेकिन कितने डायपोल, 10⁻21, सो तो मल्टीप्लाई, so final result comes out to be, we can say this will be -30, so -30 plus 26 will be -4, and here it will be, so here it will be 15.75।
so this much amount of work will be done. All right, so ये काफी straightforward problems था. Now let's move on to the uh, 11th part of the question. So 11th part थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, और अगेन वर्क डन पूछा है, तो हमने एक सिमिलर प्रॉब्लम किया है वर्क डन पे इन द ऑब्जेक्टिव टाइप. तो एनीवेज लेट्स ट्राई इट अगेन. तो हियर हमें गिवन है कि एक चार्ज है 6 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन and another charge of 5 minus 5 microcoulomb is placed on the y-axis at position 0,6 meter. All right, so here we can see the situation. यहाँ पे दी हुई है situation, so just we have to write the given data. So हम साथ साथ लिखते चलते हैं यहाँ पे. So A पे ये दिया हुआ है, ये जो distance है, let's suppose this point has to be O. तो ये दूरी जो दी है हमें 6 दी हुई है, और पॉइंट P पे ओरिजिन पे एक चार्ज है दैट इज पॉइंट O पे 6 माइक्रोकूलम का. ऑलराइट, सो ओके, दिस मच डेटा इज बीन गिवन, और फर्स्ट पार्ट हमसे बोल रहा है कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P. P पे टोटल पोटेंशियल फाइंड करना है. अब पोटेंशियल फाइंड करना है मींस यहाँ पे जो चार्ज है ड्यू टू दिस बोथ द चार्ज एट A एंड एट O दैट इज -5 माइक्रोकूलम और 6 माइक्रोकूलम की वजह से जो पोटेंशियल P पे आ रहा है हमें वो कैलकुलेट करना है. और P की दूरी भी अगर हम ध्यान से देखें क्वेश्चन में, तो ये गिवन है 8 मीटर, और यहाँ पे 6 मीटर गिवन है. ऑलराइट, सो ये क्लियर है क्वाइट. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पार्ट इटसेल्फ. सो यहाँ पे कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. सो अगेन वी कैन राइट by superposition principle, we can say potential at P will be equals to potential at due to A, due to charge at A plus potential due to charge at O. So simply just potential का formula हमें apply करना है, that is kq by the distance. K A पे चार्ज है -5 माइक्रोकूलम, सो -5 into 10⁻⁶. एज वी हैव डिस्कस, पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने में हमें चार्ज का नेचर कंसिडर करना होगा, दैट इज माइनस है तो माइनस पुट करना है हमें यहाँ पे. और डिस्टेंस अगर हम केयरफुली एनालाइज करें बिटवीन ए एंड पी, so this can be calculated using Pythagoras. So this is 6 36 64, so this comes out to be 10. So ये 10 मीटर आया, प्लस यहाँ पे ओ का चार्ज है 6, so k 6 means 6 into 10⁻⁶, again divide by, अब distance between these two is 8. तो फाइनली अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, k की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं 9 into 10⁻⁹, तो ये हो जाएगा 9 5 जा 45, 10⁸8 10⁻². ऑलराइट, सो यहाँ पे ये सॉल्व करने पे आ रहा है, प्लस k अगेन वी कैन पुट 9 into 10⁻⁹, so 9 6 are 54 by 8 into 10⁻⁹ minus 6 is 3. Alright, so finally the result comes out to be 22.5 into 10⁻² volt. So ये पोटेंशियल आ रहा है पॉइंट P पे. दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वी हैव डन विद, तो इसको A बोल देते हैं यहाँ पे. और नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. यहाँ पे ये बोल रहा है कैलकुलेट वर्क डन और टू ब्रिंग अ प्रोटॉन दैट इज पॉजिटिव इन नेचर फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट P. अब कोई एक चार्ज हम इन्फिनिटी से प्रोटॉन को ला रहे हैं पॉइंट P पे. ऑलराइट, सो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं दैट इज प्रोटॉन, और यहाँ पे हम P पे ला रहे हैं. तो क्या पूछ रहा है यहाँ पे, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द साइन ऑफ वर्क डन. फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन ओवर हियर. तो वर्क डन के लिए हमें क्या पता है, वर्क डन का फॉर्मूला जस्ट वी हैव, हमें पोटेंशियल पता है पॉइंट P पे, जस्ट वी हैव कैलकुलेटेड. सो सिंपली क्या करना है हमें, वर्क डन के लिए पोटेंशियल एट P इनटू जो चार्ज हम ला रहे हैं उसको, दैट इज Q. दिस थियरी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. जब कभी भी किसी चार्ज को किसी पॉइंट पे लाया जाता है तो फर्स्ट वो पॉइंट पे हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना होता है, देन उसके बाद जस्ट पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दो, सो वी कैन गेट वर्क डन और वी कैन से पोटेंशियल एनर्जी. सो Vp क्या मिला था हमें, 22.5 10⁻². जस्ट वी हैव टू सब्स्टिट्यूट इट्स वैल्यू 10⁻². charge on proton, we can see it is 1.6 10⁻⁻19. So finally जो result work done, this is 36.
तो ये वैल्यू जो मिली हमें, वर्क डन की वैल्यू मिली इन जूल्स. ऑलराइट, और वी कैन कन्वर्ट दिस जूल इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट आल्सो. सो वी कैन से 1 electron volt is 1.6 10 raised to minus 19 joule. So using this conversion, we can convert this into electron volt as well. So anyways, this is the work done we have calculated. Finally, हमसे पूछ रहा है कि what is the significance of the sign of work done. Alright, so regarding this, we have to be careful by the definition of electrostatic potential energy. We can say change in electrostatic potential energy is always the negative of work done. That is, we are taking it as to be small work done for small change in potential energy. All right, by conservative force, as we can see, the work done by external force. That is, if we are bringing charge from infinity to this point, so there is some work is being done by एक्सटर्नल फोर्स. तो यहाँ से कुछ एक्सटर्नल फोर्स वर्क कर रहा है इस प्रोटॉन पे उसको पॉइंट पी तक लाने के लिए, बिकॉज इस पी पे ऑलरेडी पोटेंशियल है जो इसको दिस पॉइंट प्रोटॉन को रिपेल कर रहा होगा. ऑलराइट, ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज दिस प्रोटॉन इज गेटिंग रिपेल्ड, लेकिन हमने एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसे इस पॉइंट तक लेकर आया है और ये पॉइंट इसे अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो हमने पी तक इसे लाके रखा है. मतलब हमने इन दो फोर्सेस को बैलेंस किया है. दैट मीन्स अगेंस्ट में हमने वर्क डन किया है. So this is what the definition of or the significance of work done. We can say the sign of work done. Alright, हमेशा हमारा जो work done होगा वो कंजर्वेटिव फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसीलिए नेगेटिव साइन लगी है यहाँ पे. So I hope you have understood the concept of this. So let's move on to the next question. Okay, so this question says again capacitor का problem है. In a parallel plate capacitor with air between the plates. Each plate has area of 6 into 10 raised to minus 3 meter square and separation has been given 2 mm. First calculate करना है, calculate capacitance of the capacitor. Alright, if this capacitor is connected to 100 volt supply, what would be the charge on each plate? Second part में हमें इसका charge calculate करना है. Third part में बोल रहा है how would charge on the plate be affected if 2 mm thick mica sheet of value, that is dielectric constant 6, is inserted between the plate while voltage supply remains connected. So basically तीन चीज़ें पूछी गई हैं इसमें. So let's begin with the first part. So first part में क्या बोल रहा है कि air है in between the plates. So we can say for A part capacitance we can directly write A epsilon 0 by D. So यहाँ से capacitance first हमें calculate करना है capacitance. So straight away this formula we can use. Area has been given as 6 into 10 raised to minus 3. एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू 8.85 10 रेज़ टू माइनस 12. ये वैल्यूज याद होनी चाहिए हमें. और फाइनली सेपरेशन 2 mm है ना, तो 2 into 10 raised to minus 3 meters. So on solving we can get the capacitance value as, so this comes out to be 26.55 10 raised to minus 12 farad, or we can write 10 raised to minus 12 farad is nothing but it is picofarad. So we can straight away say it has to be 26.55 picofarad. So this is the first part we are done with. Second part में हमसे पूछ रहा है if this capacitor is connected to 100 volt supply, what would be the charge? So this is quite straightforward problem. So we can say formula for charge is QCV, and C is we have calculated 26.55 10 raised to minus 12, and we can say we have to just multiply it with 100. Alright, so the result comes out to be 26.55 10 raised to minus 10 coulomb. Alright, so this is what the value of charge that is being developed on the plate we are getting, or we can say this way also, 2.65 10 raised to minus 9 coulomb, or which can be written as 2.65 nano coulomb. So this is the second part of the question. Finally, third part में देखते हैं हम क्या पूछ रहे हैं हमसे. How would charge on the plate be affected if 2 mm mica sheet has been inserted? Simple problem है. Just अब हमने क्या किया, एक mica sheet को insert कर दिया है. So for the third part, इसका capacitance कैसे change हो जाएगा? C का formula आ जाएगा A epsilon 0 K by D.
ऑलराइट, और हमसे पूछ क्या रहा है इसमें, हाउ द चार्ज ऑन द प्लेट। अब अगेन हमें चार्ज कैलकुलेट करना है, सो कैपेसिटेंस फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे। जो कैपेसिटेंस की वैल्यू हमें ऊपर मिली थी, जस्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 6, that is dielectric constant value, so we can write 26.55 into 6 picofarad. So this comes out to be 159.3 picofarad. यहाँ से ये कैपेसिटेंस मिल गया अगेन, so we can say Q will be equals to CV. सेम बैटरी सोर्स लगा हुआ है इसमें, so we can say this can be written as 159.3 10 raised to minus 10 it will become. So finally we can say this will be 15.93 10 raised to minus 19 coulomb, or finally we can say it has to be 15.9 nano coulomb. Alright, so this much charge will be developed on the plate. ये second part of the question, final third part था ये question का, और यहाँ पे 3 भी आएगा. Alright, so this is the 12th question we have done with. Now finally the last question of this chapter, that is again the series and parallel combination. So वन बाय वन लेते हैं, फर्स्ट इसको करेंगे देन इसको करेंगे. सो फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन वी कैन सी देयर आर 3 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम ऑफ वैल्यू 1 3 एंड 6, और सेपरेशन अगर ध्यान से देखें तो d/3 d/3 एंड d/3. वी हैव स्टडीड वन शॉर्टकट फॉर इट, SHD, दैट इज सीरीज सेपरेशन डिवाइड इफ द सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स गेट डिवाइडेड. ये चीज मैंने ऑलरेडी डिस्कस की थी फर्स्ट प्रॉब्लम में भी, शायद जब हम ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मोस्टली गेट कंफ्यूज कि कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है. let's say this is the plate and this is the separation. Now we can clearly see this diagram we have tilted, ये diagram को हमने 90 degree tilt किया है. So we can say there are 3 sections of it, 1 2 and 3. So we can see the separation is getting divided. ये d/3 है, ये भी d/3 है, और ये भी d/3 है. तो सेपरेशन डिवाइड हो रहा है, मीन्स ये तीनों भी सीरीज में है. तो अगर ये सीरीज में है तो जस्ट वी हैव टू अप्लाई द सीरीज कॉम्बिनेशन फॉर्मूला, दैट इज 1/c इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3. और सिंपली वी कैन जस्ट यूज द कैपेसिटेंस फॉर्मूला. कैपेसिटेंस फॉर्मूला व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड इज गिवन बाय c इज इक्वल्स टू a epsilon 0 k by d. ऑलराइट, और यहाँ पे d क्या है, फॉर ईच इज d/3. so just we can substitute the values. So c equivalent 1/c equivalent will be 1/c1, that is we can say it has to be d 3a epsilon 0 k. ये कैसे आया, क्योंकि d को हमने सब्सटीट्यूट किया d/3 फॉर ईच केस. तो d/3 सब्सटीट्यूट किया 3 ऊपर चला जाएगा, दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं. तो a epsilon 0 k, k for first case it is 1. alright, so we have to be careful. यहाँ से d/3 ऊपर गया तो 3 नीचे आ गया, 3 एप्सिलॉन 0, k की वैल्यू 1 है फॉर फर्स्ट केस, और d ऊपर चला गया. ऑलराइट, सिमिलरली फॉर c2 वी कैन से k की वैल्यू 3 है, तो अगेन सेम थिंग विल बी देयर, क्योंकि थिकनेस अगेन d/3 है तो 3 k एप्सिलॉन 0, तो k की वैल्यू कितनी है फॉर 3. फाइनली वी कैन से फॉर इट इज 3a एप्सिलॉन 0, k की वैल्यू 6. so finally we can say सॉल्विंग दिस वैल्यू क्या कॉमन निकाल सकते हैं हम, d/3a एप्सिलॉन 0. बच क्या रहा है अपने पास, 1 प्लस 1/3 प्लस 1/6. ऑन सॉल्विंग वी कैन से ये क्या है, d/3a एप्सिलॉन 0, और यहाँ पे बचेगा हमारे पास, we take the LCM of it, so we can say 6 plus 2 plus 1/6, that is 9/6. so ये हो जाएगा अपना 9/6, that is d/2a epsilon 0.
So this is what the value of C equivalent for the first case we are getting, that is C equivalent will be equals to 2a epsilon 0 by C. So ये first part का आंसर हो गया for first part. Alright, so for the next part we can take it over here, that is for B part. तो बी में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे दोनों ही तरीके के कॉम्बिनेशन है। ये दोनों आपस में यहाँ पे सेपरेशन डिवाइड हो रही है d/2 तो ये दोनों सीरीज में और इसके साथ ये पैरेलल में। तो फर्स्ट वी कैन कैलकुलेट द सीरीज कॉम्बिनेशन। तो फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन वी कैन राइट, तो देख लेते हैं कि K2 और K3 जो है वो सीरीज में है, और वी कैन से सिंपली राइट ये फर्स्ट कैपेसिटेंस, ये सेकंड, ये थर्ड। तो 2 और 3 आर इन सीरीज, second and third are in series, and one is in parallel with the two. Alright, तो पहले 2 और 3 को सॉल्व करते हैं सीरीज के लिए। So we can say 1 over C equivalent will be equals to 1 over C2 plus 1 over C3. Alright, so again the same thing, capacitance formula, that is we can write सेपरेशन कितना है अब इस केस में, सेपरेशन इफ वी कैलकुलेट एनालाइज d/2 और एरिया है a/2, so we have to be careful with this. So we can first let's write a/2 एरिया है a epsilon 0, k k2 के लिए क्या है, it is 3, so I am directly writing the values over here, d/2. Alright, so better to write completely if there is some confusion, और उसके लिए है ये 6 डिवाइड बाई d/2। चेक कर लेते हैं 6 है, यस। तो अब इसे सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो ये आएगा अपना, वी कैन से 2 and 2 will be cancelled from this, so what we are left with is d upon 3a epsilon 0, और यहाँ पे क्या बच रहा है d upon 6a epsilon 0। तो अगेन यहाँ से जो कॉमन निकलेगा वो निकलेगा d अपॉन एप्सिलॉन a epsilon 0, यहाँ पे बच रहा है 1/3, 1/6, that is 9/18, और we can say 1/2। सो द फाइनल आंसर जो आएगा सी इक्विवेलेंट का ये केस में वो आएगा 2a epsilon 0 by d। ऑलराइट, लेकिन ये कंप्लीट आंसर नहीं है अभी, बिकॉज इसके साथ अभी 1 पैरेलल में भी है। सो वी कैन से देयरफॉर सी इक्विवेलेंट, लेट्स से इसको हम सी डैश मान लेते हैं, सी डैश। ऑलराइट, क्योंकि 2 और 3 का ये हाफ ही पार्ट हुआ है ना अभी। तो सी इक्विवेलेंट दैट इज कंप्लीट विल बी इक्वल्स टू C1 प्लस सी इक्विवेलेंट डैश, बिकॉज दोनों पैरेलल में है ये। तो C1 का जो कैपेसिटेंस होगा वो होगा a epsilon 0, इसकी वैल्यू k की है, फॉर दिस इट इज 4। एरिया अगर ध्यान से देखेंगे इसका तो a/2 है, और सेपरेशन पूरा d है, सेपरेशन पूरा d है, एरिया इज a/2 प्लस सी इक्विवेलेंट जो हमें मिला 2a epsilon 0 by d। तो फाइनली जब इसे सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आएगा हमारा a epsilon 0 d कैन बी टेकन आउट, है ना। तो 2 का हो जाएगा 4, सो फाइनल आंसर 4a epsilon 0 d। तो ये एक्चुअल आंसर फॉर सेकंड केस। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एंटायर कंसेप्ट, और यहाँ पे इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट होते हैं। एंड अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो यू कैन जस्ट गो इनटू द प्लेलिस्ट एंड यू विल गेट द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस न्यूमेरिकल्स। ऑलराइट, सो इसके बाद यू कैन जस्ट पुट इट इन अ कमेंट कि कौन से चैप्टर के न्यूमेरिकल्स यू रिक्वायर्ड नेक्स्ट, एंड वी विल ट्राई टू अपलोड इट accordingly. Alright, so I hope you have understood everything clearly, and thank you for watching.